Right, sir? Yes, sir. Okay, so this will be one of our daily activity also, and not only here, because we will be continuing after the sessions also. The idea is that we all understand how to do meditation and make it a part of our daily life. So it's a small meditation, बट जरूरी नहीं है कि 3 मिनट का ही करना है. यहाँ तो टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग 3 मिनट का प्लान कर रहे हैं. Otherwise, you can do it for longer time also, and maybe even for a smaller time also, for a few seconds also. So we'll just understand the steps involved. है ना? Just today's session, because it's a first time we are doing this. So you can just note down the steps also. Okay, and when you do it in your homes or anywhere you want, try to fix some timings. Like the people who do regular meditation, they set some alarms also. And do this for 1 minute. It's called traffic control of mind also. Uh, and But it depends. It totally depends on if you have some time, then maybe that is before sleeping, you can do that. And in the morning also, whenever you wake up, you can fix some timings. So today we'll just understand the steps involved. So the first step will be to take your positions. And so wherever you are sitting, just try to sit up right, straight. Some kind of means self डिसिप्लिन बोल रहा हूँ या कंफर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज अगर हम स्ट्रेट पोजीशन में बैठे हैं तो कभी लॉन्ग टाइम के लिए बैठना होगा तो दिक्कत हो जाता है. तो वी हैव टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन बिटवीन. इट्स नॉट कि बिल्कुल नहीं करना है, बट ट्राई टू, बिकॉज हमारा फोकस थॉट्स पे रहेगा मेनली, एंड अटेंशन हम इट्स ए मेंटल एक्टिविटी. तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा तो बॉडी में ध्यान जाएगा. तो इसीलिए ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस या पोस्चर्स है ना, ये सब चीज़ों पे पहले से ही सेट करके बैठ जाएं तो अच्छा रहता है. So sit upright, just relaxed position, whatever is your relaxed position, and you can close your eyes or. But the meditation that we do is normally with open eyes, so you can gently means open your eyes also. In step 2, we'll do the breathing activity. In this activity, maybe just take few deep breaths, 3 times maybe, wherever you are sitting. Your focus should be on your breathing only, and take deep breaths. You should feel relaxed. Slow and deep, 3 times at least. I'll shut down. So observe your breathing only. When you inhale and when you exhale, just observe your inhales and exhales. And the step 3 will be attention. So you have to, for this moment, you have to just focus on the eagle. This video today is somehow not running well. I'm not sure why. So you just focus on the eagle, like you can imagine you are an eagle also, and try to experience the freedom that this eagle is having right now. Complete freedom.
And step number 4 will be affirmation. So you have to just means in your mind, you have to just repeat this maybe a few times that I am a happy being. I remain calm, at ease. Whatever happens today, I am focused, disciplined, alert. And give these thoughts to yourself few times. I am easy. I am easy. Like this eagle. I'm doing everything, but I am easy. So let's do the recap of yesterday. Anyone? किसी का भी कोई भी टेक अवे था या कोई भी पॉइंट अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हो. सर मेरा थोड़ा व्यू पॉइंट था रिगार्डिंग ईगल व्यू एंड एंट व्यू. सो नॉर्मली हम सर लाइफ में एंट की तरह ही ज्यादा फोकस रखते हैं कि हम लाइफ में जो रूटीन के काम करते रहते हैं हम उन पे फोकस रहते हैं. तो ईगल व्यू होने से थोड़ा सा ईज आउट मिलता है जरूर कि आपको लाइफ की जो ब्रॉडर थिंग्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. और उससे थोड़ा सा ये बेनिफिट मिलता है कि दैट योर जो थिंकिंग लेवल है आपका वो थोड़ा सा बेटर होता है. ऐसा नहीं होता जैसे आप एंट वाला वो स्टोरी था कि एंट इज डूइंग वर्किंग एंड एक स्मॉल लीफ आके भी गिर जाता है तो वो वरीड हो जाता है कि नाउ अब क्या होगा. बट व्हेन यू व्यू द टोटल ओवरऑल व्यू लाइक अ ईगल व्यू देन यू रियलाइज कि इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. देयर इज सम अदर वे आउट आल्सो. दैट वाज रियली गुड. आई मीन गुड लर्निंग फ्रॉम यस्टरडे सेशन. So eagle is just we are taking this example because it's all about the consciousness. And eagle, what we are trying to convey here is or to understand is that we have to shift from ant consciousness to eagle consciousness, which is from the lower to the higher consciousness. Higher consciousness means higher quality of life, means higher levels of happiness also. And because eagle, while doing everything, is easy and uh, means when we are easy mentally, so we can take better decisions and we can take very quick and means very effective decisions. But if you are too much busy in our small tasks, and so like ants, if there is small problem, they get confused. And and eagle definitely has a larger view, so it can take better decisions for long term also. It can see the future also, in fact. It's because our vision is now very wide. So our effort will remain to be in eagle consciousness. This is a higher consciousness, and
while doing everything, like an aunt, we will be doing everything. और कुछ? सर मुझे कुछ पूछना था। यस अतिशय। सर मतलब ईगल और एंट को कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर तो नहीं है? मतलब वो तो अपने हिसाब से जितना उनको मिला है उतने हिसाब से ही कर रहे हैं ना, अपना तो 100% दे रहे हैं। यस। तो उन दोनों को कैसे कंपेयर हाँ, हम आंट एंड ईगल को लिटरली नहीं कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज उनकी तो लिमिटेशंस है। आंट कैनॉट फ्लाई एंड ईगल कैनॉट जस्ट क्रॉल, है ना। सो उनकी तो अपनी अपनी डिजाइन ऐसा ही है, बट हियर वी आर टॉकिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस, देयर माइंडसेट्स, है ना, आवर माइंडसेट। वी मेंटली वी कैन बिकम आंट ऑल्सो, वी कैन बिकम ईगल ऑल्सो। ओनली ह्यूमन बीइंग्स हैव दैट कैपेबिलिटी, है ना, टू रेज देयर कॉन्शियसनेस. So the discussion is only about the mindsets, not about the ants and eagles. Okay. Yeah. And we have to respect, means every living being, है ना. We are not disrespecting anyone, anything. So we have to respect everything, everyone, है ना. But our takeaway is that how we can be in higher consciousness, how we can improve our life, the quality of our life, while doing everything remaining easy. तो आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा था, आपने मिस कर दिया था क्या? That 5 minutes of video that we saw. भी सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो हाँ, तो वो शायद इसीलिए आपका ये डाउट रह गया, उसमें यही बात को पर डिस्कशन हुआ था एग्जैक्टली। तो अगर देखिए, अगर आपका सेशन मिस होता है ना, तो बिकॉज सेशन मिस होता है मतलब वो नेक्स्ट जो भी डिस्कशन होगा उसमें कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा, ठीक है। और क्या हमारा जो मेन जो डिस्कशन है ना, उसके पीछे का जो भाव है वो मिस हो जाएगा, हम फिर शब्दों में रह जाएंगे, है ना। एंड हियर एवरीथिंग हैज ए डीपर मीनिंग। तो अगर किसी का मिस भी हो जाता है ना, तो वो रिकॉर्डिंग में जाके देख लें, तो नेक्स्ट सेशन अटेंड करने में समझ में आएगा शायद ज्यादा से। ठीक है। और क्या था डिस्कशन हमारा आज? हमारे पास थोड़ा सा मतलब डिस्कस काफी कुछ करना है, बट टाइम उतना ही है, तो वी विल मूव बिट फास्ट ऑल्सो। एंड होप यू नो कि 9th और 10th को भी सेशन नहीं होगा, राइट। तो वी हैव कवर नाउ फास्ट। सो लेट मी शेयर दिस स्लाइड। इसमें हम लोगों ने बात किया था हेडोनिक हैप्पीनेस का एंड ऑल। तो इसमें इफ यू सी दिस कि वी डिफाइन अवर बेस लाइन्स, है ना, कि वेयर आर वी। हेडोनिक हैप्पीनेस तो जो है बट हमारा वापस हम अपने बेस लाइन पे आ जाते हैं। तो हमारा जो ये पूरा एफर्ट रहेगा कि हम अपना बेस लाइन को कैसे इम्प्रूव करें, मीन्स हम ऊपर कैसे उठें, अपनी बेस लाइन को कैसे ऊपर उठाना है। तो हम वही डिस्कशन कर रहे हैं कि हम जो हायर कॉन्शियसनेस की जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझें, नॉलेज है उसको समझेंगे, है ना। अदरवाइज हमारा बेसलाइन इंप्रूव नहीं होगा। अगर हम अनकॉन्शियसनेस में रहेंगे या रैट रेस में रहेंगे तो हम उसी लेवल पे ही ऑपरेट करते रहेंगे। ये सेशन सिर्फ एक नॉर्मल सेशन की तरह रह जाएगा और हम लोग अपने अपने लाइफ में वैसे के वैसे वापस चले जाएंगे। सो आइडिया इज नॉट टू जस्ट अटेंड दिस सेशंस बट टू रेज अवर कॉन्शियसनेस। तो एक एक कॉन्शियसनेस को हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे एंड
जब वो हमारा एक कॉन्शियसनेस में जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा अपना और चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो वो हमारा पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, हमारा प्रोग्रामिंग उस हिसाब से होने लगता है। तो देन हम चढ़ती कला में चले जाते हैं। मीन्स अगर एवरी डे वी आर डूइंग रिमाइंडिंग अवर सेल्फ अबाउट दिस कॉन्शियसनेस कि नहीं मुझे ईगल कॉन्शियसनेस में लाइक रहना है ना, मुझे हायर लेवल पे जाना है, हायर कॉन्शियसनेस में जाना है, मुझे इजी रहना है, सब कुछ करना है बट स्टिल इजी रहना है, तो मीन्स आई एम रेजिंग माई कॉन्शियसनेस। एंड उसके लिए रास्ता यही है जो हम चल रहे हैं, यही रास्ता है, इसके इसके अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं। इफ यू हैव टू रियली बी दी हैप्पी बीइंग्स, जो हम अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा हैप्पीनेस लेवल नेचुरली इज 10, आवर नेचुरल हैप्पीनेस लेवल इज ऑलवेज द 10, है ना, बट वी लूज इट बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट्स और बिकॉज ऑफ मैनी अदर फैक्टर्स which we are trying to understand in the form of root causes. तो हमने ये क्वेश्चन एक लास्ट में लिया था कि हमारे पास क्या ऑप्शन भी है कि हम 100% फ्री रहें लाइक ईगल। कैन वी बिकम ईगल्स? मीन्स फ्री कैन वी बी फ्री लाइक ईगल्स, सब कुछ करते हुए भी? Don't think so, sir. तो करंट लेवल में तो 10-20% तक ही होंगे या उससे भी कम। ठीक है, तो वैसे तो देखिए 100% तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ वी कैन मूव इन दिस डायरेक्शन एंड हमें धीरे धीरे कुछ नई नई बातें मालूम चलेंगी जिससे कि हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होगी एंड वी विल बी फीलिंग मोर फ्री, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी। एक ये कोट सबने देखा ही होगा, वी कैन नॉट सॉल्व अवर प्रॉब्लम द सेम हेयर ऑल्सो। अगर हमें लग रहा है कि हम 100% फ्री हो जाएंगे, है ना, और हम अपना सेम लाइफ स्टाइल में रहेंगे, सेम थिंकिंग में रहेंगे, तो नहीं होगा। उसके लिए तो कुछ डिफरेंट ही करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ऑल्सो। वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग्स, टू चेंज अवर कॉन्शियसनेस। मतलब दिस इज अबाउट the science, but in spirituality it says we cannot change our life experiences without changing the consciousness. तो हम जिस कॉन्शियसनेस में भी आज की डेट से ऑपरेट कर रहे हैं वो ही हमें रेस करना है। एक एग्जांपल, एक छोटा सा वीडियो है, इफ यू कैन सी दिस, है ना। एक देयर इज ए फिश इन द पॉन्ड, अगर आप इसको देखेंगे ना, इट हैज ए चॉइस। So this one jump is required actually to change our consciousness. This is to move from our limited mindsets to unlimited mindset. If a small fish can do it, we can also do it. Only thing is कि हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। मेटामॉर्फोसिस सब लोगों को मालूम ही है, हम तो बचपन से इसको सुनते आए हैं, समझते आए हैं। हाउ ना बटरफ्लाई ना creates itself, which is against the logics, but it happens. So some effort is always required. And there was one philosopher, he said, we don't know that we don't know even. And the first step that we are doing through this, all of you are doing, is we are just trying to know that we don't know maybe.
बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम होंगी, बहुत सारी बातें मालूम होंगी जो हमें मालूम है, बट थ्रू दीज सेशंस वी विल बी एबल टू रियलाइज दोज थिंग्स। और हो सकता है बहुत सारी बातें हमें मालूम ही ना हो, जो हमें पता ही नहीं कि हमें पता नहीं है। लाइक दिस, अगर अगर हम इस पूरे दुनिया को देखते हैं, ए टू जेड सपोज इज द कंप्लीट वर्ल्ड, दैट्स फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, एक जो क्रॉलिंग वॉर्म होता है ना, उसके पास कुछ सेंसेस होते हैं, एक या दो सेंस होते हैं सपोज उसके पास, तो वो सिर्फ एक या दो सेंसेस के थ्रू पूरे वर्ल्ड को देखता है, उसके लिए दुनिया उतनी ही है, राइट, क्योंकि उसके पास दो ही सेंसेस हैं। अब कोई एक ऐसा बर्ड है जिसके पास उससे ज्यादा सेंसेस हैं, तीन चार सेंसेस हैं, है ना, तो उसका बैंडविड्थ उतना बढ़ जाता है। वो हो सकता है पूरे A to Z में A to C तक का दुनिया को समझ सकता है, देख सकता है। एंड वी ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंसेस, है ना, तो हमारी बैंडविड्थ ज्यादा है एज ह्यूमन बींग्स। बट कैन वी स्टिल से कि हमें वी नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट? There are so many ऐसे things which are not manifested through our senses. हम अगर आंखों से देख भी रहे हैं ना, तो वो एक बैंडविड्थ है, एक वेवलेंथ में ही देख सकते हैं ना। एक्सरे एक्सरे वाला विजन तो हमारे पास नहीं है ना, है ना, तो उसके लिए हमें एक्सरेज को यूज करना पड़ता है अगर हमें कुछ और डीपर देखना होता है ना। तो इस तरह से वी कैन सी ओनली इन ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, है ना, वी कैन हियर ओनली इन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स। हम सब कुछ तो नहीं सुन पा रहे हैं, सब कुछ तो नहीं देख पा रहे हैं, है ना। सो वी कैन नॉट से कि वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड। हम जितना अपने 5 सेंसेस से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, फील कर पाते हैं, सिर्फ उतना ही हमें मालूम है। इट डजेंट मीन कि वो बाकी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, है ना। सो देयर physical senses, and there are so many things which are in the forms of energies. एनर्जी तो हम नहीं देख सकते हैं, है ना। तो वी हैव टू यूज सम डिफरेंट lenses also now, है ना। तो डिफरेंट lenses मीन्स हेयर वी आर यूजिंग स्पिरिचुअलिटी, मीन्स हम स्पिरिचुअलिटी के लेंस से कुछ कुछ चीजें को देखने की कोशिश करेंगे, विच इज मेनली अराउंड एनर्जीज। So this is the first step, I would say, Anna, to embark on the journey, in this journey, the things that we didn't know, which are means not manifested for us so far in our life, and through this knowledge we will be able to manifest few things which we could never do that. तो इसी तरह का एक कंसेप्ट आता है माइंडसेट की। जब हम बात कर रहे हैं तो एक माइंडसेट की जब हम बात करते हैं तो एक कंसेप्ट है बेगर वर्सेस प्रिंस माइंडसेट। लाइक हमने आंट वर्सेस ईगल माइंडसेट को एक्सप्लोर किया था। I'll share one audio only. There is no video which will explain this concept. हम सिर्फ आध्यात्मिक संदेश का सार दे रहे थे। Sorry. किसी भी आध्यात्मिक संगठन से जो संदेश दिया जाता है, Sorry, 1 second.
ऑडियो आ रहा था क्या पहले? जी सर, आ रहा था। आ रहा सर। Okay. Okay. So we'll listen to this a few minutes, not total 18 minutes. I will just play for a few minutes. और इस गहरी अज्ञानता की नींद से जाग सके, स्थिति में है। ताकि हम इससे बाहर निकल सके और इस गहरी अज्ञानता की नींद से जाग सके। तो हम एक छवि लेते हैं, एक राजकुमार की छवि या इसे इमेज कहें, इसका हम उपयोग करते हैं। ये राजकुमार भूल गया है कि वो एक राजकुमार है और सोचता है कि वो एक बेगर, भिखारी है। वास्तव में वो सोया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी जादू के प्रभाव में है या जादू के अधीन हो गया है और सोच रहा है कि वो एक भिखारी है। और कोई है और उसे कहता है कि तुम तो एक राजकुमार हो, प्रिंस हो। तो वो बहुत खुश होता है, कहता है अच्छा, मैं एक राजकुमार हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर तुरंत ही कहता है कि क्या आपके पास मेरे लिए कुछ पैसे हैं, सिक्के हैं? वो राजकुमार शब्द सुनता है, लेकिन वह भिखारी की स्मृति में इतना गहरा खोया हुआ है। भिखारी की स्मृति में जब भी उसे कोई सिक्के या पैसे मिलते हैं तो वो खुश हो जाता है, और अगर वो पैसे और सिक्कों को खो देता है तो तुरंत ही दुखी भी हो जाता है। वो बहुत खुश हो सकता है जब भी उसको बहुत पैसे मिलते हैं, परंतु वो जैसे कि भिखारी की स्मृति में भिखारी का जीवन जी रहा है। और सबसे बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स तो ये है कि भीख मांगते हुए भी वास्तव में वो वही शाश्वत राजकुमार, एटर्नल प्रिंस है। वो एक संपूर्ण राज्य का मालिक, उसके पास सभी खजाने हैं और वह नहीं जानता कि वह भीख मांग रहा है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। भिखारी हमेशा के लिए सिर्फ भीख नहीं मांगता। ये भिखारी एक सिंड्रोम होता है, उसके कई अन्य लक्षण होते हैं, उसके रोज के व्यवहार में जो प्रत्यक्ष होते हैं। भिखारी अपनी तुलना अन्य भिखारियों से, और जैसे कि वो एक मुकाबले में है, उनके साथ कंपटीशन में है, और फिर निराश हो जाता है और अपने भीख के कटोरे से जुड़ जाता है, अर्थात अटैच हो जाता है और अपने आप को अंदर से असुरक्षित महसूस करता है। और इस भिखारी की वृत्ति की वजह से कई अन्य जटिलताएं भी होती हैं। राजा और राजकुमार का जीवन अलग होता है, उनका मन अलग होता है। वो भिखारी सिंड्रोम के अधीन नहीं होते हैं। उनका जीवन एक उत्सव है, खुशी है, दान है, दान का नृत्य, डांस है। उनके जीवन में प्यार है और दातापन का जीवन होता है। जब राजकुमार यहाँ आता है तो वह देता रहता है और धर्मार्थ होकर तो वो धर्मार्थ होकर संगठनों की मदद करता है,
वो यहाँ कुछ भी लेने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि पहले से ही वो भरा हुआ है। और हम इस राजकुमार की बात कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक समकक्ष क्या है, यानी इसका स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट क्या है? संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है कि अभी इस समय हमारे पास बहुत से खजाने हैं। जब हम आत्म अभिमानी कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम राजकुमार और राजकुमारियों के पास बहुत और अनंत खजाने हैं। जब राजकुमार भूल जाता है कि वो राजकुमार है, तो जैसे वो जादू के अधीन होता है। So yeah, so कोई थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है क्या था ये डिस्कशन? जो थोड़ा सा समझ में आया वो ये था कि हम कोई न कोई माया के उसमें रहते हैं, और जो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोच रहती है। अगर सोच बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एक्शंस होते हैं, जब कम रहती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा कम रहता है। उसको ब्रेक करना जरूरी है हायर कॉन्शियस में जाने के लिए, ये समझ में आया। या सो ऑब्वियसली देखिए, हम प्रिंस एंड बैगर की लाइफ को कंपेयर करते हैं, तो ऑल्दो एज उसने एग्जाम्पल क्यों दिया कि वो बेहोश है, मतलब है तो प्रिंस ही। वी आर ऑल लाइक प्रिंस, है ना, बिकॉज हमारे पास बहुत कुछ है ऑलरेडी। अगर हम देखते हैं ना, हमारे पास जो कुछ होता है फिर भी हम एक कहीं ना कई बार बैगर माइंडसेट में चले जाते हैं। तो वो हमें चेक करना है कि कई बार हम ऐसा तो नहीं, हम भी बैगर माइंडसेट में है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी लाइक हमारे पास बहुत कुछ है। डू वी रियली नो अवर ट्रेजर्स? क्या हमने कभी अपने ट्रेजर्स को देखा भी है? हमारे पास एक बॉडी है, सबसे पहली बात तो सपोज, है ना, बॉडी इज मतलब उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं हम लोग, हमें एक बॉडी मिली हुई है। अगर कोई उसको, मतलब आजकल तो ह्यूमनॉइड्स थोड़ा बनाना चालू किया है, बट अगर किसी को कंप्लीट बॉडी को डिजाइन करना हो, किसी भी साइंटिस्ट को, है ना, आई रिमेम्बर कि ऑलमोस्ट 10 years ago, है ना, द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि मित्सुबिशी ने एक प्रोजेक्ट लिया था कि इफ दे आर टू डिजाइन ए ह्यूमन बॉडी, है ना, एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं बन सकता, वेरी क्लोज टू दैट, बट थियोरेटिकली, तो दैट कॉस्टेड अराउंड 500 crores। आज की डेट में तो पता नहीं कितना एस्टिमेट होगा उनका, एंड आई डो नॉट नो हाउ मच ह्यूमन कॉस्ट, एंड और वो भी प्रोग्राम है, ह्यूमन बीइंग तो बन ही नहीं सकते हैं वो लोग। तो हमें एक कंप्लीट बॉडी सिस्टम मिला हुआ है विच इज इन thousands of crores. We already have this system with us, and we have so many qualities within us, है ना, एंड हमारे पास इतना वक्त है, हमारे पास एक दिन में 80,000 हमको सेकंड मिलते हैं। ट्रेजर है ना वो। कितने सारे लोग हैं जिनके पास वो वक्त नहीं होगा शायद, है ना। हमारे पास हेल्दी बॉडी है, हमारे पास इतना वक्त है, हमारे पास सभी क्वालिटीज हैं, इतने सारे स्किल्स हैं, तो वी हैव इनफ। फिर भी हम कई बार बैकर माइंडसेट में चले जाते हैं। हमने देखा हो बहुत अमीर अमीर लोग, इतना पैसा है, फिर भी उनको ये रहता है कि पैसे कैसे इकट्ठा कर लें, है ना। वो बैकर माइंडसेट से नहीं निकल पाते हैं। एंड बैकर माइंडसेट इज ऑल अबाउट दैट, इट्स जस्ट ए माइंडसेट। इट्स नॉट अबाउट कि हम बैगर हैं कि नहीं है, वो तो जो बैगर है वो तो है ही, उनको तो जरूरत है ही, उनको तो मांगना ही मांगना है। बट हम भी बहुत सारी चीजों के लिए बैगर बन जाते हैं लाइफ में, जस्ट बिकॉज कि हमें हमने लाइक वो राजकुमार है ना, वो भूल गया कि वो राजकुमार है, तो इसलिए तो वो मांग रहा है, इसलिए तो वो बैगर बन गया है। तो हम भी अपनी जो हमारी रियलिटी है ना, हम उसको भूल चुके हैं। एज पर स्पिरिचुअलिटी हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि हमारे अंदर है क्या क्या। वी हैव एवरीथिंग विद इन,
अगर हम उसको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे तो हमें मतलब किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ती है टू रिमेन हैप्पी. So that is the just example here that we have to be in that prince mindset. We try to be in prince mindset, not in beggar mindsets. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? Someone said. जी सर, आ रही है सर, परफेक्ट. भी किसी का आप अपना ऑडियो बीच चेक में कर एक बार लीजिए. कभी कभी बंद हो जाती है बिल्कुल, वो क्या क्योंकि वो होता हम है? नेटवर्क एरिया के चलते हो रहा है अदरवाइज. यह संदेश हमें बताता है कि का सार Yeah, so we discussed about these mindsets, ant mindset, eagle mindset, beggar mindset, and prince mindset. And I'll skip this for the moment. So today we will understand a small concept of bondages. Now, I don't know how to use whiteboard, so I am just using this sketch. मैंने पहले से बनाया है. And so there are two people in this. You can see उनको आपस में बांध दिया गया है किसी चेन से, सपोज, एंड फिजिकली बांध दिया गया है. तो इसमें हम लगता है कि इनकी लाइफ नॉर्मल होगी. इनको क्या क्या दिक्कत आती होंगी. मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही. हाँ. तो इफ यू अगर आपको किसी और इंसान के साथ बांध दिया जाए फिजिकली, तो व्हाट डू यू थिंक? लाइक डिसलाइक सर अलग होंगे दोनों के. लाइक्स और डिसलाइक दोनों के अलग होंगे. इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी दोनों की. So they will not be free, na? So they will be in bondage, है ना? So they cannot move around. अगर किसी को कहीं जाना है, जा नहीं सकता है, दोनों बंधा हुआ है दूसरे के साथ, है ना? किसी को जल्दी उठना है, वो जल्दी नहीं उठ सकता है ना? किसी को जल्दी सोना है, वो जल्दी नहीं सो सकता, बिकॉज सबको, दोनों को एक साथ ही सब कुछ करना पड़ेगा, है ना? किसी को ब्रश करना है तो दोनों को एक साथ ही जाना पड़ेगा ब्रश करने के लिए. सो खाना खाना है तो भी साथ में जाना पड़ेगा. सो दे आर टोटली बॉन्डेड, दे आर इन कंप्लीट बॉन्डेज, है ना? एंड दे कैन नॉट एंजॉय दैट फ्रीडम, ऑब्वियसली, है ना? तो इसमें तो फ्री हो नहीं सकते, है ना? सो अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब इनको फिजिकली नहीं बांधा जा रहा है. One person is here in India and another person is suppose in USA. So क्या अभी भी ये इन मतलब बॉन्डेज में आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाउ? मेंटली. या सो अब ये मेंटली तो बॉन्डेज में आ ही सकते हैं, है ना? तो अगर एक बंदा मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है दूसरे बंदे से कि उसने उसको मैसेज किया है और वो रिप्लाई दे, और रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मीन्स इट्स ए बॉन्डेज. ही इज नॉट मेंटली फ्री, ही इज इमोशनली इन बॉन्ड.
there could be many other expectations also through in his mind. So even though they are physically very different in very different places, so they can still be in bondage. What about this? अब दो लोग नहीं है, एक बंदा है ना, और उसके सामने एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, या सपोज दिस क्लाउड्स हैं, इसके साथ ही बॉन्डेज में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वी कैन, है ना, हम अगर ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्लाउड से कि ये मेरे सामने ही रहे हमेशा और ये मेरे हिसाब से बरसने लगे, है ना, तो मैंने तो एक क्रिएट कर लिया ना बॉन्डेज उसके साथ। सो इसमें होता क्या है, इसमें मतलब नुकसान क्या है कि जब भी मैं किसी इंसान से या किसी भी वस्तु से एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता हूं, जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने वाला जो इंसान होता है वो अपने आप को एक स्लेव की पोजीशन में डाल देता है। और उसकी मतलब स्लेव की पोजीशन मीन्स कि उसने कुछ डिमांड रखी है और वो मतलब नाउ ही इज द स्लेव ऑफ द अदर पर्सन, वो उसका मास्टर बन जाता है। जब तक वो उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं करता है तो ही इज ए स्लेव नाउ। इट कुड बी another person, it could be an object. So we can check now कि हम कितने लोगों के या कितनी चीजों के स्लेव बने हुए हैं, हम हमारी डिपेंडेंसीज कितने लोगों के ऊपर है एक्सटर्नल वर्ल्ड में। मेरी जितनी ज्यादा डिपेंडेंसीज एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर है और आई नो कि वो मेरे हिसाब से तो नहीं फॉलो करेंगे मुझे, है ना, जरूरी नहीं है, कभी कर भी सकते हैं कभी नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आई रिमेन स्लेव ऑफ दैट पर्सन और दैट सिचुएशन और दैट ऑब्जेक्ट। मैं जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ, जितने ज्यादा लोगों के साथ स्लेव बना हुआ हूं, तो मेरी मेरी मानसिक स्थिति कैसी होगी? कैन आई रिमेन हैप्पी इन दोज मोमेंट्स until my demands are fulfilled? So just think over it. So this is one of the reason we lose our freedom. जब हम फ्रीडम की बात कर रहे थे ना, 100% फ्रीडम की बात कर रहे थे, हमारी बहुत सारी जो फ्रीडम तो हम अपनी इमोशनल या मेंटल डिपेंडेंसीज के कारण लूज कर देते हैं। तो मेरी जो कंप्लीट हैप्पीनेस तो भी फिर दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगी ना। एंड ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये ही हमारे बॉन्डेजेस हैं। एंड दिस इज माय इमोशनल स्लेवरी। आई नीड टू चेक नाउ, क्योंकि स्लेव माइंडसेट में अगर मैं हूं, पूरा दिन मैं स्लेव माइंडसेट में ही हूं, तो आई कैन नेवर बी हैप्पी। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। Now the question is कि because we are living in this world and we are dependent on so many things, so many people. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मतलब प्रॉब्लम इज नॉट पीपल और ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस, वो तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो तो जहाँ है ही। हमें अगर हमारी फैमिली है तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली है यार, है ना, तो मतलब उसमें तो कुछ गलत है ही नहीं है। वी मस्ट हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ।
problem is the expectation. Can we remain free from expectations? Is that even possible? Because this is one of the causes of my unhappiness. हो सकता है क्या? पॉसिबल तो है। अगर किसी ने वाई वाई किया है अपना, मैंने तो बहुत किया है, ठीक है, तो आई एम स्पीकिंग ऑन माई एक्सपीरियंसेस ओनली, कि जब भी हम अनहैप्पी होते हैं, आप उसका उसको थोड़ा डीप जाके देखना, वाई वाई करके देखना कि मेरा अनहैप्पीनेस का रीजन ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन पे आके खत्म हो जाता है। उसकी वजह से और बहुत कुछ होता है, वी विल डिस्कस दैट, बट इट अफेक्ट्स माई हैप्पीनेस। अगर मैंने एक्सपेक्टेशन रखी है, फुलफिल नहीं हो रही है, तो आई कैन नेवर बी हैप्पी। समवन इज सेइंग समथिंग सर। सर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, जैसे कोई भी डिजायर ही, जब बात कर रहे हैं कि डिजायर रखने के बाद ही हम एक्शन करते हैं उसके ऊपर, अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो फिर उसके आगे मोटिवेशंस कहाँ से मिलेंगे? या एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन होंगी और वो मेरे मतलब तो ठीक है, तो अगर आई एम नॉट हैप्पी तो आई एम ओके। समझा नहीं सर, मतलब मैं ये बोला चाह रहा था कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो हैप्पी तो हो जाएंगे, बट अगर एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखेंगे तो मोटिवेशंस भी कहाँ से, मतलब यहाँ से आएंगे? मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, भी किसके लिए जीना है, क्या करना है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो माइंड में है, तभी उसके लिए वो अचीव करने के लिए हम जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसी के लिए ही कर रहे हैं। यस, yes, so this is our current mindset only, right? You're right, हम ऐसे ही जी रहे हैं। So what others feel कि मींस ये पॉसिबल भी है क्या कि हम एक्सपेक्टेशन फ्री रहें और हैप्पी, मतलब दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज, रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। हाइपोथेसिस है, देखिए ये कहीं यहाँ सही गलत की बात नहीं है, इससे हाइपोथेसिस होता है ना कि भैया इज इट पॉसिबल, यस और नो, हम दोनों पे बात कर सकते हैं आगे चल के ना। सर करंट सिनेरियो में तो नो ही है जी, विदाउट एक्सपेक्टेशन सर मुश्किल ही है काम। सामाजिक जीवन में संभव नहीं है सर। सामान्य जो जीवन है, सामाजिक जीवन, उसमें संभव नहीं है। संभव नहीं है ना। Yeah. So we'll try to understand this also. I'm not sure कितना वक्त रह गया है अभी। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो कल आई एम नॉट नो, कल तो सेशन नहीं होगा, बट आप लोग इस पे थोड़ा सा और सोच सकते हैं, टेक इट एज ए होमवर्क, कि अगर हमें अपने, चलो खत्म नहीं कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, है ना। तो कम करने के लिए पहले तो एक्टिविटी यही करना कि आप पिछले में भी 2 या 3 दिन का आप लोग मतलब ऑब्जर्वेशंस लेना अपना, सभी लोग एक एक करके अपना, जब भी हमें कुछ भी इमोशनल डिस्टरबेंस हुआ या अनहैप्पीनेस का एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, उसके पीछे कॉज क्या था। In most of the cases, you will find कि it was my expectation which was not fulfilled. वो एक्सपेक्टेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डिजायर भी हो सकता है ना कोई। तो जस्ट ट्राई टू
हमें रूट कॉज का तो मालूम चल जाए ना कि हाँ मेरी अनहैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन, देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल, हाउ डू आई मिनिमाइज माई एक्सपेक्टेशंस, है ना, वाइल इंजॉइंग, वाइल डूइंग एवरीथिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। मैं इसी समाज में रहूंगा, ठीक है, इसी समाज में मैं सब कुछ करूंगा, मैं अपना जॉब भी करूंगा, ठीक है, मैं हर साल प्रमोशंस भी लूंगा, ठीक है, मैं गाड़ियां भी खरीदूंगा, मेरी फैमिली भी होगी, सब कुछ होगा मेरे पास जैसा चल रहा है, इनफैक्ट उससे बेटर हो, स्टिल आई मिनिमाइज माई एक्सपेक्टेशंस। सर मेरा इस पे एक डाउट था। हम लोग अपने लाइफ पे मे भी अगर पर्सनल लाइफ में हम लोग एक्सपेक्टेशन ना रखें या फिर लो कर लें, बट अगर हम प्रोफेशनल लाइफ पे आते हैं तो उस पे तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं तो ही कुछ हमें अचीव होता है। हाँ ये है कि डिसअपॉइंटमेंट जो होती है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी तो भी हम उसके आगे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर मतलब हमने जो काम किया उस पर क्या इम्पेक्ट आया क्या नहीं आया, उसके फर्दर हमें आगे और कैसे करना है क्या करना है, बिना एक्सपेक्टेशन के तो फिर प्रोफेशनल लाइफ में तो नहीं कर पाएंगे ना सर। पर्सनल लाइफ में तो मे भी हो कि हम मिनिमाइज कर लें, बट नहीं, अभी हम पर्सनल लाइफ सभी में बात कर रहे हैं, हम अभी लाइफ को पूरा लाइफ टोटलिटी में ही देखेंगे। इट्स नॉट अबाउट पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, है ना, हम टोटलिटी में ही देखेंगे। सब जगह हमें बेटर करना है, सब जगह हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव करना है, सभी रिलेशनशिप्स को और बेटर करना है, स्टिल बाय मिनिमाइजिंग और रिमूविंग आवर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सो इट्स ए थॉट, है ना, जस्ट थोड़ा सा और इसके ऊपर सोच के देखना, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, हाउ डू वी मिनिमाइज और एटलीस्ट रिमेन फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन मतलब हम यहाँ उन एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं जो कि हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। इट कुड, अगर मेरा गोल है, पॉजिटिव गोल है और मैं हैप्पीली उसको अचीव कर रहा हूँ, है ना, तो दैट इज फाइन। जैसे आप भी बोल रहे हो कि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना मेरे को, मेरी एक्सपेक्टेशंस को। हम भी तो हम अनहैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है या डिजायर है जो मुझे चढ़ती कला में लेके जाती है, मेरे को ज्यादा सक्सेस देती है, मेरे को ज्यादा हैप्पी करती है, दैट इज फाइन। हम्म। ठीक है, सो वी क्लोज टुडेज सेशन विद दिस। अगर कोई किसी का कोई थॉट है तो वी कैन डिस्कस। So we close. Yes, Thanks, sir. Vivek. जी Thank सर। you. ओके सर, थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.
मैं एग्जिट करके देखता हूँ। अनिल मालविया है एक तो, और मैंने अभी ज्वाइन किया है। रिमूव मीटिंग कर दिया। अब मैं